Now we are going to start with residential status of assessee. So residential of assessee, status of assessee. Assessee includes individual, all the persons are the assessee. Okay, we have seen this in last class that all the persons are assessee. So we will be discussing about all the persons. Okay, what is their residential status? If they are resident or non-resident, and if they are resident, then ordinarily resident or not ordinarily resident. For all this, there are certain conditions. Okay, and we find out a residential status just because to calculate how much of tax is to be charged on them. Okay, how much amount of tax should be charged on them and which amount should be charged on them. So residential status of assessee we will be starting with in case of individual. If we are talking about individual, then when they will be resident and when they will be non-resident. Okay, so there is a conditions of resident. An individual shall be resident in India if he she fulfills at least one condition of the following two. So there are two conditions, and out of that two condition, if any one of the condition is fulfilled, then that person will be resident, that individual will be resident. And if both the conditions are not fulfilled, then that person will be non-resident. Okay, so what are the conditions? The first condition is he she has been in India for a period of at least 182 days or more in the relevant previous year. Okay, in the relevant previous year, he she has been in India for at least 182 days or more. So we will be calculating days, that how much day a person has been in India. If it is 182 days, if they have been in India for 182 days, then they will be resident in India. And the or means if this condition is not fulfilled, 182 days condition is not fulfilled, then we will come to the second condition. We will see that whether that condition is fulfilled or not. Okay, so the next condition will be he she has been in India for a period of 365 days or more during 4 previous years immediately preceding relevant. See, now over here understand that in relevant previous year, there is a relevant previous year word used over here, because if we are talking about assessment year 2021, okay, if assessment year is 2021, then what will be the previous year? 1920. 2021 sir. 1920 है ना, 2019 to 2020. That Yes, will be sir, the previous year, and we will be calling that relevant previous year. Means just the previous year, just before the assessment year, is a relevant previous. Okay. So in condition number 2, it has been told that that person should be 60 days or more during the relevant previous year. Means if we are taking assessment year 2021, then that person should be in India for at least 60 days in 2019-20, and before 1920 at least 365 days in 4 preceding years. Okay, so just preceding the relevant previous year means the relevant previous year is 2019-20, then except that the previous 4 years will be termed as for example, if so, have you understand this? What is the condition over here? That if 2020-21 is the assessment year, 1920 will be the previous year, that will be the relevant previous year. And in relevant previous year, that person has to be in India for at least 60 days. Okay, see, for at least 60 days. And the preceding relevant previous year, out of 4 years, he should be in India for at least 365 days. Okay, so we have to calculate over here day wise.
Now, when there is certain exceptions to the above condition number 2, means in this exception, what we are going to study is in condition number 2, just we have seen that in relevant previous year, that person should be in India for at least 60 days. Okay. Now in this exception, it is said that he should be in India for 182 days in place of 60 days in the following situation. There are two situations. In these two situations, that person, that individual should be in India for 182 days in place of 60 days in condition number 2. See, it is clearly mentioned that exceptions to the above condition number 2. Okay. An individual being citizen of India leaves India in any previous year for the purpose of employment in foreign countries or goes outside India as a member of the crew of an Indian ship. So if any person is living in India for the purpose of employment, okay, or goes outside India as a crew member of Indian ship, then that person, we will be calculating 182 days in place of 60 days in relevant previous year. And an individual being citizen of India or a person of Indian origin who is outside India came to visit India for the purpose of any work in previous year. So any person who is citizen of India or a person of Indian origin, okay, and they are living outside India, and for some reason, for some purpose, they came to visit India. So if any person who is of Indian origin or who is a citizen of India came for a visit in India, then we will be seeing 182 days in place of 60 days for in their relevant previous year for the residential status. Okay. Now there are certain points to remember. If an individual, see, we have focused over here over the purpose of employment. So if a person is living in India for the purpose of employment, that is, he got the employment in any of the foreign countries and he move over there for the employment, then 182 days will be taken. But if any person is going outside India in search of a job, right now he hasn't been in a job, he hasn't got any employment outside India, but he is searching for a job. So if any person is searching for a job, then this exception will not apply. We will be seeing 60 days for his residential status, not 182 days. Okay. So if an individual lives in India for the purpose of searching employment or job, then the above exception shall not be applied. Where if a person has his employment in India and that company sends that person on a tour outside India, okay, suppose if you are working in Reliance in India only, okay, and for any specific purpose or work, Reliance has sent you in foreign country for 3 to 4 months. So that will not be seen as a employment outside India. No, you are employed in India, just you have been outside India for a tour. Okay, in connection with your employment, that is in India only. So that exception will also not apply. Means we will be taking 60 days in that condition, not 182 days. Then the third point is Indian origin. What does Indian origin means? We have seen over here Indian origin. Indian origin means any person or their parents or grandparents was born in undivided India. Undivided in India matlab India before 1947. That is when Bangladesh, Pakistan all were the part of the India. Okay, so Indian origin means those person, whether individual himself or herself, or their parents or their grandparents, born in undivided India. Okay, that they will be known as Indian origin. Now, in calculation of number of days, both days entering in India and exiting from India shall be included. Just remember this. If any person is
entering in India, and if any person is exiting from India, leaving India, then all of this will be included. All the days will be included while calculating 182 days or 60 days, whatever be the situation be. Okay. So यहाँ तक ये clear हुआ? Yes, sir. So see, we have discussed whether he will be resident or non-resident. For being resident, these two conditions, either of the condition is to be followed. Okay, is to be fulfilled basically. Any of the two conditions. If both the conditions are not fulfilled, then he will be non-resident. That person will be non-resident. Okay. And if that person is resident, then we have to find out whether that individual is ordinarily resident or not ordinarily resident. So for this, there is again two conditions. So additional condition to become ordinarily resident. So for becoming ordinarily resident, an individual assessee will have to satisfy both the additional conditions. Over here, there are again two conditions. And in this, both the conditions must be fulfilled. If both the conditions are satisfied, then only that person will be called as ordinarily resident. Okay. What are the conditions? She should remain in India as a resident for at least 2 years out of 10 years immediately preceding relevant previous year. See, in additional condition, in both the additional condition, we will be seeing the year just preceding relevant previous year. Means relevant previous year is not included in calculation for ordinarily resident or not ordinarily resident. Okay. Means relevant previous year, again we are discussing. If suppose our assessment year is 2020-21, the relevant previous year will be 2019-20. So for additional condition, 2019-20 will not be taken into consideration. We will be taking before that. Okay, preceding relevant previous year. So over here it is written that immediately preceding relevant previous year, out of the 10 years, in at least 2 years, he should be resident in India. Okay. And that individual should stay in India for at least 730 days during 7 years. At least 730 days during 7 years. Immediately preceding to relevant previous year. Okay. Again, relevant previous year से पहले 10 साल में 2 साल क्या रहा हो? Resident. ओके और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहा. If both the conditions, see over here it is and means both the condition is to be satisfied. If both the conditions are satisfied, then that person, that individual will be ordinarily resident in India. And if any of the following condition is not satisfied, then that individual will be not ordinarily resident. Okay. So this was the situation of individual. We have completed the residential status of an individual. Now we will be starting in case of Hindu undivided family, HUF. If we are talking about HUF, Hindu undivided family, then again there will be two conditions, that whether it will be resident or non-resident. And if they are resident, then whether they are ordinarily resident or not ordinarily resident. Okay. So again, that conditions is to be satisfied over here. So see, in HUF, the condition changes, okay, for being a resident. Because HUF is a business, individual is a natural person, and HUF is a business. So being a business, we can't see that whether it is in India for that much days or not. Okay, now, so we will be seeing over here whether the control and management is in India or not. So HUF is a business. So we will be seeing whether that business is controlled and managed from India or not. Okay, so during the previous year, a HUF will be resident if its control and management
fully or partially situated in India. If fully or partially that control and management is situated in India, then that hub will be resident in India. And it will be non-resident if whole of the control and management is situated outside India. Now, what is control and management used over here? That means the important policies that is made for the business. If they are made in India only, then that business will be resident. So we have to understand this, whether that business is controlled from India or outside India. If that business is controlled from India, HUF is controlled from India, then it will be resident in India. And if that business is controlled outside India, if the whole control is outside India, then that business will be non-resident. Yes, Muskan? Muskan, do you have any question? So this was the condition of a resident of a HUF. Now we will be seeing additional condition to become ordinarily resident. We have seen over here that in HUF also there will be resident, non-resident. If the HUF is resident, then there will be two conditions, whether they are ordinarily or not ordinarily resident. ठीक है? सर अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सारा मैनेजमेंट बाहर हो रहा है तब तो वो बाहर का बिजनेस हो गया ना. हाँ, तो इसी के लिए तो बोले if the whole control, no, so if business is going in India also and control is outside India, then that business will be non-resident. मीन्स कोई बिजनेस चल रहा है इंडिया में बट उसका पूरा पॉलिसी सारा कंट्रोल सारा मैनेजमेंट इंडिया से बाहर है. यस सर. तो उस केस में वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा. यहाँ क्या है, कहा गया, देखो पूरे जैसे अब कोई कोई बिजनेस होता है ना जो इंडिया में भी काम कर रहे हैं, इंडिया से बाहर भी 2-3 कंट्रीज में काम कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर इंडिया में काम कर रहा है जो बिजनेस, उसका पॉलिसी भी इंडिया में बन रहा है ना सिर्फ, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है. यस सर. ठीक है, तो हम लोग को ये देखना है कि कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, जो उसके पावर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं. इफ वो इंडिया में है तो वो रेसिडेंट है, चाहे पार्शियली भी क्यों ना हो. ठीक है, और अगर इंडिया के बाहर है, कंप्लीटली इंडिया के बाहर है, तो वो नॉन रेसिडेंट है. अब आता है एडिशनल कंडीशन टू बिकम ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. व्हाट आर द एडिशनल कंडीशंस फॉर दिस? सो for being ordinarily or not ordinarily resident, we have to see the situation, the position of the karta. Okay, everyone must be knowing about karta. Who is karta? Yes, sir. Family's head. Family's head. ठीक है, the head of the family who runs the Hindu undivided family business. Okay, the whole control is in his hand. So we will be seeing the condition for the karta. So the condition is same that of individual. Just over here we have to see whether karta fulfills that condition or not. If karta is fulfilling that condition, then that business will be ordinarily resident. And if karta does not fulfill that condition, then the business will be not ordinarily resident. The condition is exactly same. That is, preceding relevant year से पहले 10 साल में से 2 साल karta जो है वो resident रहा हो, या इमीडिएटली रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले आउट ऑफ 730 डेज करता 7 इयर्स में 730 डेज इंडिया में रहा. ठीक है, सो इफ दिस टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड, सैटिस्फाइड बाय करता, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. क्लियर? सर ये तो प्रीवियस वाले की तरह ही है ना. हाँ, वो बस इसमें कर्ता मेन है. हाँ, बस इंडिविजुअल के तरह ही है, क्योंकि हम लोग बिजनेस को तो नहीं देख सकते ना. बिजनेस अगर इंडिया में चल रहा है तो हम लोग बिजनेस को थोड़ी देखेंगे, बिजनेस मूव थोड़ी कर सकता है. सो अगर हम लोग को एडिशनल कंडीशन हफ का देखना होगा ना, तो हम लोग को कर्ता के हिसाब से देखना होगा. को पार्टनर से यहाँ कोई मतलब नहीं, बाकी के फैमिली मेंबर से यहाँ कोई मतलब नहीं है. जस्ट वी हैव टू सी द स्टेटस ऑफ कर्ता. ठीक है, कंडीशन वही सेम होगा जो इंडिविजुअल का था.
एडिशनल वाला। तो क्लियर है ये? Yes, sir. Okay. Now further moving, we are discussing about now in case of firm, AOP, association of person or a firm, partnership firm or any firm. So now there will be only two conditions, whether they will be resident or non-resident. Okay? Either resident or non-resident. The condition of ordinarily and not ordinarily does not exist now. In case of firm, company, we don't see that whether they are ordinarily or not ordinarily. Just we have to see whether they are resident or non-resident. Okay. So for a firm or association of person to be resident, so the condition of a resident will be a firm or an AOP will be resident in India if its control and management fully or partially is situated in India. The same चीज कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पे होना चाहिए, पूरा पूरी इंडिया में हो या पार्शियली इंडिया में हो, तो वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट कहलाएगा। और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया है उस फर्म का, तो वो फर्म क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट्स। क्लियर? अब इन केस ऑफ अ कंपनी, अगर हम लोग कंपनी का बात करें तो फिर यहाँ पे वही देखना होगा रेसिडेंट है कि नॉट रेसिडेंट। नाउ कंडीशन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखो दो चीज देखेंगे, अगर वो इंडियन कंपनी है तो इट विल बी अ रेसिडेंट ओनली। नाउ हाउ वी विल कम टू नो कि वो इंडियन कंपनी है कि नहीं। हम लोग ये बात करते हैं ना कि ये कंपनी इंडियन कंपनी है, ये कंपनी इंडिया की बाहर की है, कैसे पता चलता है कि ये इंडियन कंपनी है या ये इंडिया की बाहर की कंपनी है? 50% से ज्यादा शेयर्स अगर इंडियन रेसिडेंट के हाथ में हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कंपनी लॉ के बारे में सुने हो, कंपनीज एक्ट। देखो एक कंपनीज एक्ट होता है, ठीक है ना, सबका एक कानून है, कंपनीज का भी एक्ट है जो 1956 में था पहले, अभी 2013 में चेंजेस आया तो हम लोग बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो जो भी कंपनी उसमें अपने आप को रजिस्टर करेगा, जो भी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, एज पर द कंपनीज एक्ट, वो सारे कंपनीज क्या कहलाएंगे, इंडियन कंपनी। जैसे रिलायंस, रिलायंस इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ है, टाटा, टाटा इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ है, तो ये सब क्या है, इंडियन कंपनीज है। ठीक है, सैमसंग जो है वो कोरिया में हुआ है रजिस्टर्ड, तो वो कोरिया की कंपनी है। क्लियर है? तो अगर इंडियन कंपनी है, इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ है, इंडिया के कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हुआ है, तो फिर वो इंडियन कंपनी है, और इंडियन कंपनी है तो वो तो रेसिडेंट होगा ही होगा। पर अगर सपोज करो फॉरेन कोई कंपनी है, बाहर की कंपनी है, पर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट दैट इज पोएम इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, रेसिडेंट कहलाएंगे। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है, तो इधर द डायरेक्टर्स आर इंडियन, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स आर इंडियन एंड इज इन इंडिया, और major decisions are taken in India, so that is the place of effective management. Okay, so if place of effective management is in India, then that company will be resident in India. Is it clear to all? So we have discussed about individual residential status of individual, residential status of Hindu undivided family, of a firm and a company. Okay, now we will be discussing a chart, because I have told you ki acha, before discussing this chart we will solve certain questions as per the conditions. Okay, so write down, you will have to write down the questions. Write down the question. If an individual if an individual
comes to India on 1st November 2018. 1st November 2018. And leaves India on 31st March 2019. What will be his residential status? Whether he is resident or not? So 31st March. 31st March. He left India on 31st March. He came to India on 1st November. Huh? Non-resident. Non-resident. How many days he was in India? Sir, only sir 60. 60. No, sir. 100 something days, sir. 100 something, but you have to calculate exact date also, na? Yes. Exact date, how many days he has been in India. So see, how it will be when he came to India, we will be including that. So in Sir, November, 151 days. 151 days. कैसे calculate हुआ तो? Sir, November में he November was in 30. India for 30, Yes, ना? sir. In December 31 days. Then January 31. no, January 31, Feb 20, February 28 और March 31. 31 है ना? तो जब सब टोटल करेंगे तो 151 डेज होगा. So पहला कंडीशन में तो 182 डेज मांगा, तो ये तो फुलफिल नहीं हुआ. सेकेंड कंडीशन अगर हम लोग देखेंगे तो सेकेंड कंडीशन में क्या बोला, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में क्या होना चाहिए, 60 डेज. तो ये तो फुलफिल किया, पर उसके पहले के 4 साल में 365 दिन में इंडिया में रहना चाहिए. पर हम लोग ये देख रहे हैं कि वो तो पहली बार इंडिया में आया है नवंबर में ना, तो इसी के लिए ये Yes, कंडीशन sir. फुलफिल नहीं हुआ. ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो. अभी देखो, अब ये वाला भी बनता है कि नहीं. खाली हम डेट और वो लिखवा देते हैं, एंट्रिंग टाइम एंड एग्जिटिंग टाइम. ठीक है ना, लिख लो. या पूरा ही लिख लो ना. एन इंडिविजुअल केम टू इंडिया an individual came to India on 2nd October 2019. On 2nd October 2019 and leaves India on 31st March 2020. ठीक है, 2nd अक्टूबर 2019 पे आया और 31st मार्च 2020 को इंडिया से बाहर चला गया. तो अब ये बताओ कि वो रेसिडेंट है या नॉट रेसिडेंट. सर रेसिडेंट है, 182 डेज हो रहा है. बाकी लोग बताओ, चलो तुम अपना बताइए कि ये 182 डेज. सर रेस्टोरेंट क्योंकि 365 ज्यादा हो रहा है. हाँ हाँ, रेसिडेंट होगा.
कैसे सर क्योंकि 1 ईयर से भी ज्यादा कैसे 1 ईयर से ज्यादा है? वन ईयर से ज्यादा कैसे हो सकता है? मतलब हम तो लिखवा है नहीं, 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 2 अक्टूबर 2019 और छोड़ के गया 31 मार्च 2020। वैसे भी 1 साल से ज्यादा कैसे हो सकता है किसी भी? सुनो, फिर से कैलकुलेट करके देखो। एनीवन एल्स? कोई और आंसर कर सकता है इसको? हाँ सर, रेसिडेंट ही है। रेसिडेंट है। देखो ये वाला क्वेश्चन हम इसीलिए दिए थे ना, क्योंकि यहाँ पे ना गलती होने का चांसेस होता है। कैसे रेसिडेंट हुआ? कितना डेज आ रहा है? सर 170। तो 170 आ रहा है तो 182 से कम है ना। चलो देखो, रेसिडेंट होगा ये तो क्लियर है, ठीक है ना, रेसिडेंट है। पर कैसे होगा ये बता देते हैं। अब 2 अक्टूबर को आया इंडिया में, तो हम लोग कितना लेंगे? 30 डेज अक्टूबर का, क्योंकि 2 को आया था, तो 2 से लेके यस 30 सर, अक्टूबर का 30 डेज, नवंबर का 30 डेज, यस सर, जनवरी सॉरी दिसंबर 31, 31, जनवरी 31, यस सर, फेब में हम लोग यार 29 डेज लेंगे, 28 नहीं लेंगे। फेब में 29 इसलिए लेंगे क्योंकि ये लीप ईयर है 2020, और लीप ईयर में 29 डेज होता है। तो वी हैव टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी डे, क्योंकि अगर हम लोग 28 ले लेंगे ना तो 181 आएगा टोटल, और वो नॉन रेसिडेंट हम लोग मान लेंगे। बट नहीं, यहाँ 29 डेज रहेगा इंडिया में, क्योंकि वो लीप ईयर था। ठीक है ना, तो 29 लेंगे हम लोग फेब में और 31 लेंगे मार्च में, तो एग्जैक्ट 182 डेज आएगा। तो 182 डेज एटलीस्ट चाहिए ही कि इंडिया में रहे, तो 182 डेज था इंडिया में, तो वो रेसिडेंट है। और सर ये इम्पोर्टेंट है कि जब कैलकुलेट करें 2020 का तो वो पिछले साल ही 182 डेज रहना चाहिए। हाँ, अगर रेलेवेंट वो प्रीवियस ईयर 2017 में होता तो नहीं, इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर पे उसके जस्ट जिस साल का भी हम लोग कैलकुलेट असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला जो प्रीवियस ईयर होगा ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसी में ये Yes, sir. कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। इसी के लिए यहाँ ठीक पे मेंशन है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, पहले का नहीं। ठीक है, यस सर, तो यहाँ तक ये सारा चीज समझ में आ गया। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करके देख लिए, क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब इसका जरूरत क्यों पड़ता है कि रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, मतलब ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, इसका जरूरत कहाँ पे पड़ेगा? तो देखो यहाँ पर जब हम लोग इसको बनाने जाएंगे ना, तब हम लोग को जरूरत पड़ेगा इसका पहचानने का, भाई वो रेसिडेंट है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। ठीक है, तो देखो क्या है इसमें कि एनी इनकम टू एन एसएससी इन अ प्रीवियस ईयर। देखो एक चीज याद रखना, जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है ना, इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी भी पर्सन को इंडिया में पैसा मिल रहा है, काम कहीं पे भी किया, पैसा कहाँ मिल रहा है? इंडिया में। ऐसा हो सकता है ना कि बाहर गया, बाहर की कंट्रीज में काम करके आया, जब काम करके आया तो यहाँ पे उसको क्या मिला? पैसा मिला। तो रिसीव कहाँ हुआ है पैसा? इंडिया में। इंडिया में। तो वो तीनों को टैक्सेबल होगा, चाहे वो रेसिडेंट मतलब ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, तीनों पे ही वो क्या लगेगा? उस पर टैक्स लगेगा। जो अमाउंट वो रिसीव किया है वो तीनों पे ही टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर काम सपोज करो कि इंडिया में किया है और पैसा इंडिया के बाहर मिल रहा है, ठीक है ना, काम कहाँ किया? इंडिया में। अक्रू कहाँ पे हुआ है वो पैसा? इंडिया में, पर मिल कहीं और रहा है, किसी और जगह मिल रहा है, तो भी वो क्या होगा? तीनों में टैक्सेबल होगा। ठीक है, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट, मतलब इंडिया जुड़ा हुआ होना चाहिए कहीं ना तो कहीं से।
ठीक है, या तो काम इंडिया में किया हो पैसा कहीं भी मिले, या काम कहीं भी किया हो और पैसा इंडिया में मिले, दोनों ही सिचुएशन में तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, पूरा पूरी टैक्सेबल हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? Yes. सर इसमें कंपनी इंडियन होनी चाहिए ना? कंपनी कहीं की भी हो या कोई भी पर्सन का बात हो रहा हो, कोई भी बिजनेस का बात हो रहा हो, बिजनेस कहीं कंपनी सपोज करो बाहर की कंपनी है, वो यहाँ पे बिजनेस करके यहाँ पे पैसा कमाई, तो यहाँ उसको टैक्स देना पड़ेगा। यस सर। ठीक है ना, बस ये हमको देखना है कि कमाई कहाँ पर या फिर पैसा कहाँ पे मिला, दोनों में से इंडिया कहीं पे भी इन्वॉल्व है तो तीनों को वो टैक्स लगेगा, तीनों के लिए वो टैक्सेबल होगा। ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट में ये बोला है ना कि इनकम जो है वो आउटसाइड इंडिया मिले एसएससी को, पर उस बिजनेस से मिले जो कि कंट्रोल इंडिया में हो रहा है या उसका सेटअप इंडिया में है। मतलब समझो, बिजनेस कहाँ पर है, इंडिया में, इन बिजनेस कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, और पैसा कहीं भी रिसीव करे आउटसाइड इंडिया, तो वो रेसिडेंट को लगेगा, चाहे वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो, दोनों को टैक्सेबल। नॉन रेसिडेंट को वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर कोई बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है या इंडिया में सेटअप है और पैसा बाहर मिल रहा है, तो अगर पैसा बाहर मिल रहा है तो नॉन रेसिडेंट तो बाहर ही रहता है, बाहर का बाहर उसको पैसा मिला, तो उसके लिए वो टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है ना। पर अगर रेसिडेंट है, मतलब ऑर्डिनरीली या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो दोनों को टैक्स लगेगा। फिर चौथा पॉइंट में बोला इनकम बाहर कमाया, बाहर ही पैसा मिला, इंडिया में तो कुछ आया ही नहीं। ठीक है ना, कोई पर्सन है जो बाहर जाके काम किया, मतलब काम भी बाहर किया और पैसा भी बाहर ही कमाया, तो वो सिर्फ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट को टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को नहीं। इन लोगों को टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स सिर्फ किसको लगेगा, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट को। अगर हम इंडिया के बाहर गए, वहीं पे काम किया और वहीं पे पैसा कमाए, तो भी अगर हम ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो हमको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हम इंडिया के रेसिडेंट है, वो भी ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। सर तो इसका मतलब जितने भी यहाँ के वर्कर्स इंडिया के बाहर जाते हैं उन सबको टैक्स देना होता है? अगर वो रेसिडेंट कहलाएंगे तो, अब सपोज करो कोई वर्कर गया वहां पे और 1 साल वहीं पर रहे, तो फिर अगर पूरा साल वहीं था तो इंडिया का रेसिडेंट नहीं ना होगा, कंडीशन फुलफिल नहीं ना करेगा। ओके, कंडीशन के काम पे होगा। वो हम लोग जो कंडीशन पढ़े थे वो इसी के लिए पढ़े थे, पता करने के लिए कि वो रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। वो कंडीशन के हिसाब से ना हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो ऑर्डिनरीली है कि नॉट ऑर्डिनरीली है या नॉन यस रेसिडेंट सर। है। तो वो कंडीशन पहले देखेंगे कि फुलफिल किया कि नहीं किया। अगर वो कंडीशन फुलफिल किया और हम लोग डिसाइड कर लिए कि हाँ भाई वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट था, मतलब इंडिया में 182 डेज था, फिर बाहर जाके कमाया, बाहर ही किया, तो भी वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। और ऑर्डिनरीली भी होना चाहिए, मतलब एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए तब। ठीक है। और कोई भी पास्ट अनटैक्स्ड इनकम जो कि ट्रांसफर किया गया है या इंडिया में लाया गया है, या कभी भी कोई कमाया हुआ पैसा को हम लोग किसी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना, तो वो किसी पे भी टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि वो पैसा क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसफर कर रहे हैं, और ट्रांसफर्ड मनी में टैक्स कभी नहीं पे करना होता है, क्योंकि हम इनकम वो कमा चुके हैं। जब हम इनकम कमाए होंगे उस समय हम पैसा दे चुके हैं। जैसे नहीं होता है कि बाहर जाके कोई काम किया, इफ एनीवन इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया एंड उसको जब सैलरी मिला तो टैक्स कट के मिला होगा सैलरी ना, उसके बाद क्या होगा कि अब जो सैलरी उसको मिला वो सैलरी चाह रहा है कि हम अपने पेरेंट्स को ट्रांसफर कर दें, तो अगर वो ट्रांसफर किया अपने पेरेंट्स को पैसा, तो उसमें उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफर पे टैक्स नहीं लगता है। हम लोग जो पैसा ट्रांसफर करते हैं ना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, उसमें टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। बताओ ये कंडीशन सारा समझ में आया कि नहीं? Yes. चलो ठीक है, तो हम एक दो स्टेटमेंट्स देते हैं, अब ये बताना कि वो
किस पे टैक्सेबल होगा, रेसिडेंट पे होगा कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पे होगा कि नॉन रेसिडेंट पे होगा कि तीनों पे होगा, ठीक है ना। कुछ स्टेटमेंट्स लिखवा रहे, लिखो। इनकम accrued in India but received in England बताओ। सर तीनों में टैक्सेबल होगा। तीनों पे होगा सर। तीनों पे टैक्सेबल होगा Taxable होगा। क्योंकि वो अक्रू इंडिया में हो रहा है, बात खत्म हो गया, तीनों पे टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया पॉइंट? हाँ, एक चीज यहाँ पे नोट करके हमेशा ध्यान से रख लेना, नोट करके ना एक जगह लिख लो, हम इसमें पीडीएफ में नहीं लिखे थे, तो एक जगह ना नोट करके मेंशन कर दो, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इफ एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब इफ मत लिखना, एग्रीकल्चरल इनकम received in India from a agricultural land in India, from a agricultural land in India is exempt from tax. Is सर थोड़ा फिर से from tax. देखो एग्जेम्प्ट का मतलब होता है ना कि उसमें टैक्स लगेगा ही नहीं, उसको छूट दे दिया गया कि टैक्स ही नहीं लगना है। अगर कोई पर्सन एग्रीकल्चरल इनकम कमा रहा है और वो एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ होना चाहिए? इंडिया में। अगर एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में है और उससे अगर उसको पैसा आ रहा है, इनकम आ रहा है, तो उसको टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स में उसको छूट दिया गया, ठीक है ना। तो अगर वैसा कुछ आएगा तो हम लोग लिख देंगे तीनों में क्या, एग्जेम्प्ट, कि एग्जेम्प्ट है। और सेकंड पॉइंट में लिख लो नोट का, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड received from Indian company is exempt, ठीक है। If we are receiving dividend from an Indian company, then it will be exempt. समझ में आया यहाँ तक? मेरे को दिक्कत है? ये दोनों नोट का जो पॉइंट है समझ में आ गया कि डिविडेंड, डिविडेंड मतलब क्या होता है? कंपनी का प्रॉफिट, अगर इंडियन कंपनी का प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट और लिखो और बताओ कि ये किस पे लगेगा टैक्स या एग्जेम्प्ट होगा। सर ये क्योंकि डिविडेंड रिसीव ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब प्रॉफिट अर्न हुआ होगा तभी उस प्रॉफिट पे टैक्स लग गया होगा, हाँ, इसी के लिए ये एग्जेम्प्ट इसलिए होगा। जो शेयर होल्डर को लगेगा तो वो नहीं कटेगा। हाँ, वो डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में नहीं आता, कंपनी पहले ही उस पर टैक्स दे चुकी होती है प्रॉफिट पे, Yes. ठीक है ना। इसी के लिए हर शेयर होल्डर्स के हाथ में वो नहीं लगता है। चलो लिखो, अब क्वेश्चन लिखो एक। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन बांग्लादेश, received in India, received in India
बताओ। किसको किसको टैक्सेबल होगा या एग्जाम्प्ट हो जाएगा ये? एग्जैक्ट हो जाएगा। नहीं सर, टैक्सेबल होगा तीनों में। ठीक है ना, ये क्या होगा, तीनों में टैक्सेबल होगा। क्यों तीनों में टैक्सेबल होगा? क्योंकि जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बांग्लादेश में है, वो इंडिया में नहीं है। अगर एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में होता तो तीनों में एग्जाम्प्ट हो जाता। एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में नहीं है, तो इसी के लिए, और इनकम जो रिसीव कर रहे हैं वो इंडिया में कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन में ये लिख देते कि एग्रीकल्चरल लैंड इज इन बांग्लादेश एंड इनकम रिसीव्ड इन बांग्लादेश, तो फिर एग्जाम्प्ट होता। तो फिर ये बांग्लादेश का केस है। नहीं तो इंडिया में क्या होता है, टैक्स लगता है किसी को या नहीं लगता? सर इंडिया में होती तो वो उसका नहीं लगता टैक्स, इंडिया का। सर अगर रेसिडेंट होता तब टैक्स लगता, अदरवाइज नहीं। नंबर पॉइंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, सिर्फ रेसिडेंट नहीं बोलना, रेसिडेंट बोलने से गलत हो जाएगा क्योंकि रेसिडेंट में दोनों आता है, ऑर्डिनरीली नॉट ऑर्डिनरीली। हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होता ना तो उसको यहाँ पे क्या लगता है, टैक्स लगता। ठीक है ना, वो टैक्सेबल होता। क्लियर है? यस सर। तो बताओ यहां तक में कोई डाउट है? ये सब अब क्वेश्चन बनेगा ना? तो अब हम क्या करेंगे ना, तो तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस का एक, हम कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को सेंड करेंगे ग्रुप पे बनाने के लिए। तो तुम लोग का काम होगा कि उस क्वेश्चंस को बना करके बना लेना। दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम ग्रुप में उस क्वेश्चंस को भी भेज देंगे, इस पीडीएफ को भी भेज देंगे। ठीक है, और कोई डाउट है? लास्ट क्लास में जो बताए थे उससे रिलेटेड कोई डाउट, कुछ पूछना है कि नहीं समझ में आया हो या कुछ भी हो? नो सर। नहीं है किसी को भी? ठीक है, सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। हाँ ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है ना, तुम लोग वहां पे सेव कर देना। तो आज के लिए हम लोग का क्लास यहीं पे हम लोग रोक लेते हैं क्योंकि हम लोग का ये पोर्शन पूरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर एक जो है इनकम फ्रॉम सैलरी वो स्टार्ट करेंगे कि उस सैलरी में इनकम क्या क्या होता है, कैसे उसमें टैक्स लगता है, हम लोग ये सब चीज को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, यस सर। यस सर। धन्यवाद।